ہر گمراہی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ ایمان ہے جو ہمیں کفر سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ ایمان ہے جو ہمیں شرک سے بچاتا ہے۔ یہ ایمان ہے جو ہمیں فسق و فجور سے بچاتا ہے۔ یہ ایمان ہے جو ہمیں ضلالت و گمراہی سے بچاتا ہے۔ یہ ایمان ہے جو ہمیں گناہان کبیرہ کے ارتکاب سے بچا کر ہمیں نیک اعمال کے بجا لانے پہ ہمارے جذبوں کو بڑھاتا ہے۔ دعا کرتے ہیں خداوند عالم وہی ایمان ہمارے دلوں میں روشن فرمائے، جس ایمان کے لیے آدم نے اپنی ساری زندگی خرچ کی، جس ایمان کے لیے حضرت نوح جیسے اولوالعزم نبی نے اپنی ساری زندگی اسی ایمان کو منوانے کے لیے صرف کی۔ طوفان آئے، ساری دنیا غرق ہو گئی، محدود لوگ تھے جو ایمان سے سرشار ہوئے، وہی کامیاب ہوئے۔ سارے بے ایمان طوفان نوح میں لقمہ اجل بن گئے۔ اس کشتی میں صرف وہی بچے جن کے دلوں میں ایمان تھا۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں دیکھیں، حضرت موسیٰ کے زمانے میں، پیغمبر اسلام کے زمانے میں دیکھیں، کتنے لوگ پیغمبر کے دشمن تھے، سارے بے ایمان تھے۔ پھر جو ایمان لا چکے تھے، پھر ایسا چھانٹا لگا کہ پیغمبر کے بعد بہت سے لوگ پیچھے ہٹتے گئے۔ بہت کامیاب تھے جو کم تھے، جو ایمان پہ سرفراز ہوئے، کامیاب ہوئے۔ یہ بہت ہی خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے کہ جو شخص ایمان پہ سرفراز ہو جائے، ایمان کے حصول میں کامیاب ہو جائے، اور پھر اس ایمان کی بقا کے لیے بھی اپنی محنتوں کو صرف کرتے ہوئے جب انسان کا روح انسان کے بدن سے جائے تو اس وقت انسان کے بدن میں سب کچھ نہ ہو لیکن ایمان ہونا چاہیے۔ اسی لیے انبیاء آئے ہیں، اسی لیے ائمہ معصومین آئے ہیں، اسی لیے قرآن آیا ہے، اسی لیے اللہ کی کتابیں آئی ہیں، اسی لیے سارا اللہ نے پوری کائنات کا یہ انتظام اور اہتمام کیا ہے۔ دعا کرتے ہیں خداوند عالم ہمیں اسی نماز کے ذریعے ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے جو ایمان ہمیں نیکیوں کی طرف راغب کرے اور برائیوں سے ہمیں نفرت دلے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ پانچ چیزیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں جو انسان کے ایمان کو تباہ کرتی ہیں، ایک کفر ہے، ایک شرک ہے، ایک ضلالت و گمراہی ہے، ایک فسق و فجور ہے۔ ان کے بارے میں کچھ عرائض آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اور معصوم کے فرمان کو بھی آپ کے سامنے واضح کیا ہے۔ آج آخری ہے رکوب الکبائر ہے کہ انسان گناہوں کی سواری پہ سوار ہو کے اللہ کی نافرمانی پہ اپنے آپ کو جولانیاں دے، آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور گناہان کبیرہ میں غرق ہو جائے، مرتکب ہو جائے، تو اس کے ذریعے بھی انسان کا ایمان تباہ ہو جاتا ہے، انسان کی پوری ہستی ختم ہو جاتی ہے، انسان کا سارے کا سارا کیا ہوا دھرا ہوا سب کچھ رہ جاتا ہے۔ جب انسان دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے تو بے ایمان ہو کے جاتا ہے، اس کے دامن میں ذرا بھر نہ شرافت ہوتی ہے، نہ حیا ہوتا ہے، نہ ایمان ہوتا ہے، نہ اس کے پاس دین ہوتا ہے۔ دعا کرتے ہیں خداوند عالم اس زندگی میں انسان وہی زندگی میں کامیاب ہے جو ایمان کے حصول میں کامیاب ہو جائے، پھر ایمان کی حفاظت اور بقا میں کامیاب ہو گئے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ امام وضاحت فرماتے ہوئے کہ گناہان کبیرہ کے ارتکاب جو انسان کی ایمان کی تباہی کا موجب ہے، اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ وَمَانَ رَاكِبِ الْكَبَائِرِ، گناہان کبیرہ کے مرتکب ہونے کا معنی امام فرما رہے ہیں کہ الَّتِي بِهَا يَكُونُ فَسَادُ ایمانِهِ، وہ ارتکاب گناہان کبیرہ جو انسان کے ایمان کے فساد اور تباہی کا موجب ہے۔ فَهُوَ أَن يَكُونَ مُنْهَمِكًا عَلَى كَبَائِرِ الْمَعَاصِي، وہ یہ ہے کہ انسان غرق ہو جائے،
मुनहमिक हो जाए, गर्क हो जाए अला कबाइल मासी, मासी में से, नाफरमानियों में से जो गुनाहान कबीरा हैं उनमें इंसान गर्क हो जाए। बगैर जुहूदिन, गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है लेकिन इनकार नहीं कर रहा अल्लाह के दीन का, अल्लाह के उस हुक्म को पामाल कर रहा है, उसका इनकार नहीं कर रहा। वला तदय्युनिन, और ना ही उस गुनाह के इर्तिकाब को दीनदारी समझता है। जिस तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम के मद्दे मुकाबिल आने वाले इमाम पे तलवार उठाने वाले, वो सारी दीन की हदों से आगे निकल गए थे लेकिन इसको दीन समझते थे, इसको ईमान समझते थे। बाज़ का इंसान गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, कत्ल व गारत करता है, लेकिन इसको दीन समझता है। इमाम फरमाते हैं कि ये जो गुनाह ने कबीरा का इर्तिकाब है, इससे ये मुराद नहीं है कि इंसान जिस गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है उसको दीन भी नहीं समझता। वला लज़्ज़तिन, अगर जुहूद करे, इनकार करे तो काफिर हो जाएगा, अगर दीन समझे तो मुशरिक हो जाएगा। वला लज़्ज़तिन, और गुनाह की लज्जत को मद्देनज़र के इर्तिकाब नहीं कर रहा। वला शहवतिन, शहवत को पूरा करने के लिए भी गुनाह नहीं कर रहा, अगर ऐसा करेगा तो फासिक व फाजिर हो जाएगा। वलाकिन मिन जिहतिल हमियत, अब इस गुनाह ने कबीरा के इर्तिकाब की वजह लज्जत नहीं है, शहवत नहीं है, तदय्युन नहीं है, इनकार नहीं है, बल्कि हमियत है। हमियत का माना है तासुब, इसका माना है गैरत। बाद के इंसान गुनाह ने कबीरा का इर्तिकाब करता है तासुब की बुनियाद पर। जिस तरह एक शख्स दूसरी कौम वाले से तासुब करता है कि ये मेरी कौम का है, खा वो मुजरिम भी हो, उसकी हिमायत करता है कौमी तासुब की बुनियाद पर। बाद का मजहबी तासुब होता है। हम देखें इसी हमारा मुआशरा इस तासुब की लपेट में आ चुका है। अरब वाले गैर अरब से तासुब करते हैं, ये फारसी बोलने वाले गैर फारसी बोलने वालों से। अब हम अपने मुल्क में देख लें, एक सियासी पार्टी वाले दूसरी सियासी पार्टी से तासुब करते हैं, एक कुंबे वाले दूसरे कुंबे वालों से तासुब करते हैं। तासुब की बुनियाद पर इंसान अल्लाह की हुदूद को पामाल कर दे, गुनाह ने कबीरा का इर्तिकाब करे, तासुब की बुनियाद पर, गैरत की बुनियाद पर। जिस तरह शिया को काफिर कहा जाता है, क्यों हमें नहीं मानता, या शिया किसी और फिरके वाले को तासुब की बुनियाद पर बेदीन समझे, उसको काफिर समझे, तो ये तासुब की बुनियाद पर इस किस्म की फिक्र हो तो भी गुनाह ने कबीरा में से शुमार होती है। इस किस्म का अमल हो तासुब की बुनियाद पर, वो भी गुनाह ने कबीरा में से और इंसान के दीन और ईमान को तबाह कर देता है। वल गज़ब, गुस्सा हो, गज़बनाक हो के गुस्से की वजह से इंसान हुदूद इलाहिया की को पामाल करे, दूसरों की तौहीन करे, उनकी इज्जत व नामूस पे हमले करे। इमाम फरमाते हैं कि ये दो चीज़ें हैं, एक तासुब है और दूसरा इंतकाम और गज़ब है। इन चीज़ों की वजह से बहुत से गुनाह सरज़द होते हैं। युक्सिरुल कज़फ़ा, बहुत ज़्यादातर इंसान तोहमतें लगाता है। इंतकाम की वजह से, तासुब की वजह से इंसान मुत्तहम करता है अफराद को ऐसे गुनाहों के साथ जिसमें वो मुब्तला नहीं है, बेजा नारवा किसी पर तोहमतें लगाए। खुसूसी तौर पर ये कज़्फ़ का जो लफ्ज़ है नामूस के हवाले से है, किसी के इंसान पाक दामनी पे हमले करे, उसकी इज्जत व नामूस पे हमले करे, इस किस्म की तोहमत लगाए। व सब, या किसी को गालियाँ दे, फुहश गोई करे, बदजुबानी करे, बद कलामी करे, तो ये मामूली गुनाह नहीं है। उसके मुंह से जैसे ये तीर चल रहे हैं बदजुबानी के, वो तीर उसके ईमान को निशाना बना रहे हैं, दूसरे कुछ नहीं हो रहा। जितना वो तीर चलते हैं इंसान के दीन को, की इमारत को नाबूद करते हैं, इंसान के ईमान को तहस नहस करते हैं। इंसान की ज़ुबान चलती है लेकिन इंसान का हया ख़त्म हो जाता है, इंसान की शराफत ख़त्म हो जाती है, इंसान का दीन ख़त्म हो जाता है, इंसान का ईमान ख़त्म हो जाता है किसी को गाली देने से। अब देखें सबसे ज़्यादा आ रहे हैं जराइम, सबसे ज़्यादा इस किस्म के मज़ालिम का आले मोहम्मद शिकार हुए हैं।
तोहमतें भी उन्हीं पे। देखें 70 साल तक इमाम अली अलैहिस्सलाम पे यही सब व शितम होता रहा है। वल कातिल, इंसान फिर जब आखिरी इंतकाम की हदों पे आता है, गज़ब की गुस्से की हदों पे आता है, तो कातिल तक आमादा हो जाता है। बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बर मोहम्मद वाले सलवात। तो इसी गज़ब की वजह से, इसी तासुब की बुनियाद पर आले मोहम्मद का घर उजड़ा है। बीबी फरमाती हैं व अहमशकुम, ये खुतबा फदकिया के अल्फाज हैं, व अहमशकुम, शैतान ने तुम्हारे वजूद के अंदर गज़ब की आतिश को रोशन किया, शोलावर किया। नबी खुदा के बाद शैतान ने जिस हथियार को पहला अपनाया है वो यही गज़ब था, वो यही इंतकाम था। फ़अल्फ़ाकुम ग़िज़ाबा, तो जब उसने आतिश को रोशन किया, शोलावर किया, उसने आपको सर से लेके पांव तक देख लिया कि आप गुस्से में भर चुके हैं। फिर आपने क्या किया? भी फरमाती हैं उस शैतान ने आतिश गज़ब को तुम्हारे वजूद के अंदर रोशन किया, तुम गज़बनाक हो गए। फ़वस्समतुम गैरा एबिलिकुम, तुमने क्या किया? दूसरों के ऊँटों पे अपनी मिल्कियत के निशान लगा दिए। ये मिसाल है, उस ज़माने कदीम ज़माने में ऊँटों पर निशान लगाते थे, अपनी मिल्कियत के निशानी लगाते थे, ये हमारा ऊँट है। ये फरमाती हैं कि तुमने दूसरों के ऊँटों पे, यानी तुमने ये दस्तदराजी की है दूसरे के माल पे, जो हक तुम्हारा नहीं, दूसरों के हक को पामाल करने के लिए तुम उसी गज़ब की आतिश में आके ये सब कुछ किया है, गुस्से में आके इंतकाम की वजह से सब कुछ किया है। वर रसूल लम्मा युकबर, कब ऐसा किया है शैतान ने, कब ये आतिश जगई थी? अभी रसूल का जनाजा भी पड़ा हुआ था। लम्मा युकबर, पैगंबर खुदा भी कब्र में नहीं गए थे, अभी गुस्ल भी नहीं हुआ था, कफन भी नहीं पहनाया गया था उनको। इब्तिदारन, बड़ी जल्दी की है तुमने इंतकाम लेने में, न जाने कैसा कैसा तुमने रसूल से इंतकाम लेना था, बड़ा खतरनाक इंतकाम लिया है। अब अल्लाह के रसूल इस आतिश इंतकाम को दफन होने से पहले देख के गए हैं। इमाम फरमाते हैं ये ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे ऐसे जराइम का इर्तिकाब होता है इसी तासुब की बुनियाद पर, इसी इंतकाम की बुनियाद पर। व अख़्ज़ल अमवाल, माल लूटे जाते हैं, माल पे कब्ज़ा किया जाता है। व हब्सिल हुकूक, हुकूक को रोका जाता है, उन पे हक पामाल किए जाते हैं। वग़ैरह ज़ालिका मिनल मासी अल कबायर, इसके अलावा बहुत से ऐसे जराइम हैं जो तासुब की वजह से, इंतकाम की वजह से रूनुमा होते हैं। अल्लती यातिहा साहिबुहा बगैर जिहत लज्जत, लज्जत भी हासिल नहीं करता इन गुनाहों को अंजाम देने वाला, सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर जो गज़ब की आग है उसको बुझा रहा है, इंतकाम की आग को बुझा रहा है, तासुब की आग को बुझा रहा है। मिन ज़ालिका, इमाम फरमाते हैं उन्हीं जराइम में से अल ऐमानुल काज़िबा, इंसान झूठी कस्में उठाने तक भी आ जाता है, इतना अपने आप को गिरा देता है, पस्त करता है कि झूठी कस्में उठाने पर आ जाता है। वाख़्ज़ रिबा, हत्ता कि इंतकाम लेने के लिए वो सूद खारी पर भी किसी को माली लिहाज से कमज़ोर करने के लिए इस हथियार को भी इस्तेमाल करते हैं। बग़ैर ज़ालिका अल्लती यातिहा मन अताहा बग़ैर इस्तिलज़ाज़िन, बग़ैर लज्जत के ये सारे गुनाह का इर्तिकाब करता है। तो ये वो जराइम हैं कि आले मोहम्मद इन्हीं जराइम में उनका शिकार हुए हैं। अहकादन बदरियतन व हुनैनियतन व उहदिया, ये दुआ नुदवा के अल्फाज हैं। आले मोहम्मद से उहद का इंतकाम लिया गया, उनसे बदर का इंतकाम लिया गया, उनसे हुनैन का इंतकाम लिया गया, उनसे खंदक, जो काफिर और मुशरिकीन ने जो अली हैदर करार से ज़ख्म खाए थे, उन्हीं ज़ख्मों का उन्होंने भरम हासिल करने के लिए आले मोहम्मद पे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े हैं। मकाम और मनसब की मोहब्बत ऐसी है कि जब इंसान के दिल में आ जाए, इंसान हर इंतकाम लेने के लिए आमादा हो जाता है। दुआ करते हैं खुदावंद आलम हम अहले ईमान को इस किस्म के मुसीबतों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। ये इंसान के दीन के लिए तबाह कुन है, इंसान के ईमान के लिए तबाह कुन है। खुदावंद आलम ने इन्हीं नमाज को इसीलिए फ़र्ज़ किया है ताकि इन जराइम के खुदावंद आलम हमारे दिलों से खात्मा करे। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, हर बुराई का खात्मा करती है नमाज। इंसान अगर सिद्क़ के दिल से
نماز کی طرف آ جائے، اپنے آپ خدا کو سب کچھ بڑا سمجھے، خدا کے سامنے اپنا سر جھکا دے، تو انسان کے لیے سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں، تعصب ختم ہو جاتا ہے، انتقام، خدا سب سے بڑا انتقام لینے والا ہے۔ اگر انسان کا حق پامال ہو جائے تو خدا اس کا حق ضائع نہیں ہونے دیتا، تو گویا کہ یہ خدا کے منتقم ہونے پر، خدا کے عادل ہونے پر انسان کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے کہ قیامت بھی ہے، محشر بھی ہے، جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، خداوند عالم یہ جو جنت ہے، جہنم ہے، محشر ہے، قیامت ہے، قبر ہے، خداوند عالم ان پہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کے دلوں سے گناہوں کی نفرت پیدا ہوتی ہے اور نیکیوں کے جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ خداوند عالم ہمیں ان جذبوں کو ہمارے دلوں میں اجاگر فرمائے اور گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں خداوند عالم روشن فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔